तो कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, उसकी तस्वीरें जैसे ही सामने आ रही है मैं आपको दिखा रहे हैं। मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम जानकारी सामने आ सकती है क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों को सामने रख चुकी है कांग्रेस और अब अपनी दूसरी सूची में कांग्रेस की जो ये सूची जारी होने वाली माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भी नामों का ऐलान होगा और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Today we are going to announce the second list of candidates. Yesterday CEC met and cleared the list of around 43 names in respect of Assam, state like Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, from these 4 states, we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically, we know that actually the Congress is fighting this election for poor. Basically, this election of 2024 is poor versus rich. So far, we announced the guarantees. From the guarantee itself is very clear that we are trying to address the issue of farmers. We are very much concerned about the issue of youth in this country, unemployment issue. We are very much concerned about the social justice of this country. Today, I think Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji has announced Adivasi Sankalp. So this fight is very clear. As far as Congress party is concerned, this fight is very clear. On one side, entire rich people and their interest is standing by BJP. On the other side, Congress is fighting for the poor people. This, the same way we fought election in Karnataka, same way we fought election in Telangana, we already clearly demonstrated our vision in the both of the states. We have delivered in Karnataka whatever we promised to the people of Karnataka. We have delivered in Telangana whatever we promised the people of Telangana. Now we are giving a promise to people of India that when we are going to come back in power, we will do very proactive steps and actions in favor of poor people of this country. The other side only, they are only talking about the divisive agendas. They want to divert the entire attention of the common man through these agendas. That is what we are witnessing every day, day by day, one after one announcement is coming to divide the people, spread the violence among the people, spread the hatred among the people. So our agenda is very clear. Our agenda is people's agenda. Our agenda is poor people agenda. Therefore, that is why we are sticking on these guarantees. Our candidate selection also certainly reflecting on these agendas. So far, we are going to that path. With these words, now I am going to announce the candidates which had been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dubri, Rakibil Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, Madhav Rajbanshi. Assam, Guwahati, Srimati Meera Barthukar Goswami. Assam, Dibu Joyram Engling. Assam, Karimganj, Hafiz Rashid Ahmad Chowdhury. Assam, Silchar, Surjaya Kant Sarkar. Assam, Nagaon, Pratyut Bardoli. Assam, Kazeringa, Srimati Rosalina Turki. Assam, Sonitpur, Premlal Ganchu. Assam, Jorhat,
Gaurav Gogoi. Then Gujarat Kutch, Nishibai Lalan. Gujarat Benskantha, Mrs. Jenny Ben Thakur. Gujarat Ahmedabad East, Rohan Gupta. Gujarat Ahmedabad West, Bharat Makwana. Gujarat Porbandar, Lalitbai Vaswai. Gujarat Bardoli East, Sithar Chaudhary. Gujarat Valsad, Anandbai Patel. Madhya Pradesh, Bint, Phul Singh Bararia. Tikamgarh, Madhya Pradesh, Pankaj Agarwal. Madhya Pradesh Satna, Siddharth Kushwaha. Madhya Pradesh Siddhi, Kamaleshwar Patel. Madhya Pradesh Mandla ST, Omkar Singh Markham. Madhya Pradesh Chindwara, Nagul Nath. Madhya Pradesh Devas, Rajendra Malavya. Madhya Pradesh Dar, Radheshyam Mawal. Madhya Pradesh Khargone, Porlal Khate. Madhya Pradesh Betul, Ramu Thekam. Then Rajasthan, Bikaner, Govindram Meghwal. Rajasthan Churu, Rahul Kaswal. Rajasthan Junchunu, Brijendra Ola. Rajasthan Alwar, Lalit Yadav. Rajasthan Bharatpur, Mrs. Sanjana Jadhav. Rajasthan Tong Savai Madhapur, Arshchandra Meena. Jodhpur, Rajasthan, Karan Singh Uchiada. Rajasthan, Jalore, Vaibhav Gahlot. Rajasthan Udaipur, Tarachand Meena. Rajasthan Chittorgarh, Udaylal Anchana. Uttarakhand, Tehri Garwal. Jodh Singh Gunsola. Uttarakhand Garwal, Ganesh Gondial. Uttarakhand Almora, Pradeep Tamta. Daman and Diu, Kedan Dahiabai Patel. In this list, there are general candidates. Out of this 43 is 10. OBC is 13. Scheduled caste already 10. Scheduled tribe 9. Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Let him read in Hindi मैं first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा। हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग
लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Will you take questions? Alliance talk is going on. Everywhere, because wherever it is not completed. Please, Abhi, it's just coming to your mobile. और देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, और देखिए अब कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने जो नई सूची जारी की उसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है, और मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। और अगर खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवार अब घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस के, और साथ ही छत्तीसगढ़ के पहली सूची में 6 उम्मीदवार घोषित हुए थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो 40 सीटें हैं उनमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने अपने कर दिया है। और खास बात यह, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का टिकट फाइनल कर दिया गया। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला उनके नाम आप इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और कांग्रेस को उम्मीदवारों की सूची आपके सामने है। और देखिए कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम मंडला की बात करें तो ओमकार सिंह को बनाया गया, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को, फूल सिंह बरैया को भिंड से, राजेंद्र मालवीय को देवास से उम्मीदवार बनाया गया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, राधेश्याम को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये आपको उन उम्मीदवारों की सूची बता रहे हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम, देवास से राजेंद्र मालवीय और बैतूल से रामू टेकाम। सीधी से कमलेश्वर पटेल को भी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया, और इन 43 उम्मीदवारों में 10 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के भी हैं। और देखिए खास बात यह है इस लिस्ट की कि इस 43 उम्मीदवारों में 10 सामान्य वर्ग के, 3 ओबीसी वर्ग के, एससी वर्ग के 10 उम्मीदवारों को सूची में जगह मिली, और एसटी वर्ग के 9 उम्मीदवार इस सूची में, और मुस्लिम समाज से भी 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। तो असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया। अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, उनको जालौर से टिकट मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, मध्य प्रदेश के सीधी से कमलेश्वर पटेल, भिंड से फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम, देवास से राजेंद्र मालवीय और बैतूल से रामू टेकाम। और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप भमरकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए 10 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश के, 40 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, उनमें 16 उम्मीदवारों के नाम अब सामने रख दिए हैं कांग्रेस ने। संदीप, ठीक है, दोबारा हम संदीप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जरा संदीप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। उन 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने अब अपने 16 उम्मीदवारों को सामने रख दिया है। वहीं अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने इन 40 सीटों में 35 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। लेकिन इधर खासतौर पर कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो रही है। कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है, बाकायदा उसको लेकर के जिक्र किया गया। लंबी दौड़ की बैठक हुई और उस बैठक में यह फाइनल हुआ कि आखिर किस जगह से कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, और उसके बाद जाकर के इन उम्मीदवारों को एक साथ रखा जा रहा है। अगर 39 और 43 उम्मीदवारों को देख लिया जाए तो तकरीबन 82 उम्मीदवारों की सूची अब तक कांग्रेस ने जारी कर दी। और हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से संदीप भमरकर इस खबर पर फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। देखिए संदीप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटें और अब कांग्रेस ने भी अपने 16 उम्मीदवार इन दोनों ही प्रदेशों से सामने रख दिए हैं। बिल्कुल, और जो नाम हम बता रहे थे उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। देखिए फूल सिंह बरैया ही है,
सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा ही है, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम है, देवास से राजेंद्र वाली है, बैतूल से रामू टेकाम है। ये वही सारे नाम है जिन नामों का जिक्र हम लगातार करते आए थे। यानी हमारी जो जमीनी रिपोर्ट है, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट, उस पर मोहर लगी है। तो कांग्रेस ने अपने सबसे विश्वस्त और ताकतवर नेताओं को जो चुना है, वो नाम हमने पहले ही जाहिर कर दिए थे। और कांग्रेस की लिस्ट बता रही है कि केवल औपचारिकता बाकी थी, जमीन पर काम किया करना शुरू हो चुका है। और अब जो अगला कदम है, यानी उम्मीदवारों को पहले ही बताया जा चुका था और ये लोग जमीन पर अपना काम कर चुके हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दोनों राजनीतिक दल जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा करके वो चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, यानी वो पूरी तरह तैयार हैं। और जो नीट नक्की की हुआ करती थी उम्मीदवारों के चयन में, उनके नामों की घोषणा में, उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता। अब ये उम्मीदवार यदि योग्य है तो अपनी घोषणा में उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता था। अब ये उम्मीदवार यदि योग्य है तो अपनी योग्यता मतदाताओं के बीच में जाकर बता भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन संदीप, एक चीज हम और भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई थी विधानसभा चुनाव में, और वही चीज लोकसभा चुनाव में भी दिखी कि तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा, मोदी की गारंटी को लेकर के आगे बढ़ रही है बीजेपी। लेकिन अब कांग्रेस भी ठीक उसी तरीके से काउंटर कर रही है। कांग्रेस भी अब कांग्रेस की गारंटियों की बात कर रही है और उम्मीदवारों की ऐलान तारीखों के ऐलान से पहले ही कर रही है। लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो चुकी है लड़ाई। और मध्य प्रदेश में तो ये लड़ाई इतनी भी दिलचस्प है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस भी इलेक्शन लड़ रहा है। खजुराहो विधानसभा सीट पर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी एक सीट समाजवादी पार्टी को सौंपी है। यहाँ से भी तैयारी काफ़ी अहम लगती है। आमतौर पर राजनीतिक दलों में बातचीत का सिलसिला इतना लंबा हो जाता है कि चुनाव आते आते नामांकन की तारीख आखिरी तारीख आ जाती है, तब तक उम्मीदवारों का नाम तय हो जाता है। यहाँ पर गठबंधनों के बीच में बातचीत भी हो चुकी है और जितनी तैयार और मुस्तैद बीजेपी नज़र आती है, उतना ही दूसरे राजनीतिक दल भी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस की ये लिस्ट भी बता रही है कि उम्मीदवारों को लेकर बहुत ज़्यादा पशोपेश की स्थिति नहीं थी। आम राय बना ली गई थी। सीनियर लीडर्स को चुनाव मैदान में उतारने की जो तैयारी थी, बातचीत थी, उसमें ही शायद देर लगी है और औपचारिक चुनावी बैठकें की गई हैं और उसके बाद नामों पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। यदि भिंड की बात करें, फूल सिंह बरैया, ये आरक्षित सीट है भिंड की। यहाँ पर फूल सिंह बरैया ऑलरेडी विधायक हैं, इसी क्षेत्र से विधायक हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से विधायक हैं। अब उन्हें इन विधायक को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी तरह से ओमकार सिंह मरकाम भी ये है। रामू टेकाम को इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था और पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी ये उम्मीदवार थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। बैतूल में इसीलिए शायद रामू टेकाम है और ओमकार सिंह मरकाम जैसे जो सबसे सक्षम विधायक कहे जाते हैं। और कमलनाथ की सरकार में ओमकार सिंह मरकाम मंत्री भी थे। उन्होंने ओम धुर्वे को इलेक्शन हराया था। तो अब जो देखने में ये आ रहा है कि जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार उस क्षेत्र के यहाँ पर दाव लगाया गया है। सीधी से कमलेश्वर पटेल इलेक्शन विधानसभा का हार चुके हैं, लेकिन अब उन्हें लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ आमतौर पर गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारा करती थी, बीजेपी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन अब सीधी से पिछले दिनों में जो बीजेपी के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और यहाँ की जो सांसद रीति पाठक को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है, अब नया उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया है, उसके मुकाबले एक चिर परिचित कांग्रेस का चेहरा कमलेश्वर पटेल यहाँ मैदान में होंगे। यानी उम्मीदवारों के तौर पर देखें तो कांग्रेस ने भी काफ़ी टटोलने की कोशिश की है और हर लोकसभा क्षेत्र से अपनी तरफ से जो सबसे योग्य उम्मीदवार हो सकता है, चर्चित चेहरा, दिग्गज चेहरा, एक्टिव लोग, जिसका सबसे बेहतर प्रदर्शन हो, उसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे गए।